YouTube channels where you have come up with the library too. So in this video, I'm going to discuss about another classification, another metrics that we used to calculate the performance of our model. So in this video, I'm going to discuss about AUC ROC curve, like what is the AUC ROC curve. So let me just start with the content. Let me go over the whiteboard. AOC ROC curve we used for the classification problem. For like, if you will ask me that what are the metrics which you use for regression problem, then I will make a separate video on that. Like this confusion matrix, precision, recall, and beta score, and AOC ROC curve. These all are used for like for what classification problems. Got it. Got it. Uh, we just erase these things first. So let me write about this. For example, let's take a let's assume that let's assume that in this I will not write my like independent variable. I will just start from my dependent variable only, like what are the values जो कि उससे आएंगे. For example, मैंने यहाँ लिखा y की values 1 0 1 1 0 something like this. ठीक है. So y hat of the probability and y hat of the what is y and y hat of probability here? What is that? In this basically, let's assume that this y is my actual values. Actual values. Got it? And these y, sorry, this like here y hat तो नीचे करके रखो तो बेटर एंड दिस y this is writing and this y hat is my let me just erase this since it become very yeah. So let me just pick up my pen go here and start writing here. For example, I written y hat and y hat is like 0.8 what it 0.96 and then 0.4 0.3 and then 0.2 and 1.7. Suppose that this is my like y for the like y is equals to m for this is my actual output and this is my predicted output. Now we have to now using the AOC ROC curve, we will determine the accuracy of these predicted value. Now how we will do this? So for this, what we will do, we'll take some threshold values. Like we will assume some threshold values. We will step one, what is the step one in this AOC curve? We will assume assume some threshold values.
For example, we can assume many threshold values like 0, 0.2, 1, 0.4, 0.8, etc. Got it? And corresponding to these and क्या होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू अज्यूम करने से सो अब क्या होगा कि अब अगर मेरा y है उसके बाद मैं एक और कॉलम बनाऊंगी इसमें y हैट ऑफ ये तो मेरा y हैट ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉलम y हैट का कॉलम एक मैं बनाऊंगी y हैट ऑफ थ्रेशोल्ड का स्टेप टू वी विल मेक अ न्यू कॉलम we will make a new column y hat of threshold such that such that y hat of threshold is equals to 1 if y hat of threshold column बनाएंगे if y hat is greater than y hat जो मेरा पहले से था अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है is greater than threshold तो ये चीज याद रखने की जरूरत है and it will be 0 if y hat is less than and equals to threshold. Right? तो कुछ नहीं करना है इसमें हमें जैसे कुछ पहले जैसे मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर एग्जांपल सपोज बोलो y इक्वल्स टू mx प्लस c से आई है ये वैल्यू किस इक्वेशन से आई है मेरी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से आई है ऐसा एज्यूम कहता हूँ मैं ये नहीं कह रही कि सही की रिग्रेशन हो जाएगा बट मैं एज्यूम करने कह रही हूँ यहाँ पे ये आई है y हेड इक्वल्स टू mx प्लस c से ये वैल्यूज आई है उसके बाद हमने क्या किया हमने अज्यूम सम थ्रेशोल्ड है अब ये अजम्पशन ऐसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे उसके बाद we will make a new call which is y hat of the threshold such that अगर वो वैल्यू y hat की जो वैल्यू गिवन है अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो वो उसका आंसर को y hat of threshold मेरा 1 हो जाएगा अदरवाइज y hat of अगर लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है तो y hat of the थ्रेशोल्ड मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ये है मेरे ठीक है ना the more volume the poor the so this let's assume one particular threshold और उसके बाद हम देखते हैं अब इतना समझ आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो and I'll just quickly raise this should be clear now ठीक है let me just raise this all of this रेस करने में बहुत टाइम लग जा रहा है कितना सारा है रीजन भी नहीं बड़ी थी माय गॉड कहने से नया नहीं आ जाएगा क्या
today's session. I want to clear this book. This is my Y hat. ठीक है, ये सब एक्चुअल वैल्यूज क्या है ये सब मुझे पता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको लिखा रहने देते हैं। अब सपोज हमने थ्रेशोल्ड ले लिया, मैंने कहा ना थ्रेशोल्ड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो पहले मान लो मैंने थ्रेशोल्ड ले लिया है, वाई है 0 ले लिया है, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में फर्स्ट उस केस में यहाँ पे आ जाएगा मेरा वाई हैट ऑफ 0। ठीक है, अब अगर ये 0.8 क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड से कम की वैल्यू है तो 0 आएगा, 0 आएगी, 0 आएगा, 0 आएगा थ्रेशोल्ड से, सब थ्रेशोल्ड से। सॉरी, क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ ना, थ्रेशोल्ड से कम की वैल्यू थोड़ी 0.8, 0 से कम की वैल्यू 1 कब आएगा, जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा आएगा। 0.8 क्या है, 0 से ज्यादा है, तो 0.8 में क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें भी अगर ज्यादा है तो अगर मेरी वाई हेड की वैल्यू मेरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो 1 आएगा। थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ये भी 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 थ्रेशोल्ड से ज्यादा, सब थ्रेशोल्ड से ज्यादा। तो ये मेरी आ गई वैल्यू पोजीशन। उसके बाद में क्या कैलकुलेट करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बतानी भूल गई, पहले तो पर इसमें मतलब मेरा एसी आरसी में पहला स्टेप ये है कि पहले तो हम थ्रेशोल्ड अज्यूम करें, थ्रेशोल्ड वैल्यू वाई और वाई हेट हमें गिवन होगा। उसके बाद हमारी ये जो नया वाई हेट ऑफ थ्रेशोल्ड निकालते हैं वो मेरा 1 होगा अगर मेरी प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, और अगर मेरी प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड के इक्वल या फिर उससे कम है तो वो 0 है। ये सब करने के बाद हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं हम, टीपीआर और एफपीआर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, टीपीआर यानी कि ट्रू पॉजिटिव रेट, और सेकेंड थिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रेट। टीपीआर क्या होता है मेरा, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, और ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है मेरा, फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल नेगेटिव। ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें कंफ्यूज मत होना इसमें। जैसे हमने पढ़ा था एक्यूरेसी तो बहुत सिंपल है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल द थिंग। प्रिसीजन वाज पॉजिटिवली प्रिडिक्टेड वैल्यू में से हमारे ट्रू पॉजिटिव कितने थे, रिकॉल वाज रिकॉल मैं याद करा रही हूँ, रिकॉल क्या था, रिकॉल का मेरा एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज में से कितने मेरे ट्रू पॉजिटिव थे, और बीटा था 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और प्रिसीजन डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर इंटू प्रेसिजन प्लस वही मेरा बीटा का फॉर्मूला था। ट्रू पॉजिटिव रेट का होगा ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल पॉजिटिव, एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट का फॉर्मूला होगा फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल नेगेटिव। एक्चुअल पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू, एंड एक्चुअल पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव एंड एक्चुअल नेगेटिव। सो ऐसा याद रख लो, जैसे क्यों पॉजिटिव रेट है ये थोड़ा थोड़ा मेरा रिकॉल से रिलेटेड है ना। पॉजिटिव में प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू, एक्चुअल पॉजिटिव के बाद क्या होगा, एक्चुअल सेम रहेगा और एक्चुअल का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी होती है, जो मेरी प्रेडिक्ट पॉजिटिव भी है या तो प्रेडिक्ट नेगेटिव भी, एक्चुअल पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव और ये फॉल्स नेगेटिव, ये भी होती है मेरी एक्चुअल पॉजिटिव। ये क्या होता है मेरा, ये हो जाएगा मेरा फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ट्रू प्लस पॉजिटिव फॉल्स। ठीक है, ये होता है मेरा पी प्लस टी है। ठीक है, अब मेरे को इस कॉलम का ये सब निकालना होगा, टीपीआर भी, सॉरी, 10 सेकेंड गाइस।
मुझे इस कॉलम का सब निकालना होगा, टीपीआर भी और एफपीआर। जो मैंने वाई हेड ऑफ जीरो का कॉलम बनाया ना, इसका मुझे सब निकालना होगा, टीपीआर भी और एफपीआर। अब टीपीआर क्या होगा इसका? टीपीआर मतलब ट्रू ट्रू पॉजिटिव, मतलब जो प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव हुई है और एक्चुअल में भी, और ये प्रेडिक्ट हुई है। ये तो मेरी पहले से प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी ना, तो मेरी मॉडल से प्रिडिक्ट होके आई। उसके बाद मैंने इसकी एक्यूरेसी, जो मेरी मॉडल से प्रिडिक्ट होती है, इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए करना है। और ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव कौन कौन से होंगे जो मेरे? ट्रू पॉजिटिव तो वही होते हैं ना जो वन वन आए जिसमें। बिल्कुल। ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं इसमें? एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, तीन, चार। चार है इसमें ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। चार इसमें मेरे ट्रू पॉजिटिव हो गए है ना। उसके बाद ट्रू पॉजिटिव का फोर है। अब फॉल्स नेगेटिव मतलब जो मेरे प्रिडिक्ट हो नेगेटिव है। नेगेटिव तो कोई प्रिडिक्ट हुआ ही नहीं, तो इसका क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे आ जाएगा मेरा जीरो, ये आ जाएगा मेरा 4/4, विच इज वन। ऐसे ही मेरा इसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या आएगा? फॉल्स पॉजिटिव रेट आएगा ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब जो प्रेडिक्ट मेरे जीरो हो गए हो, बट एक्चुअल में तो प्रेडिक्ट तो जीरो कुछ हुआ ही नहीं, तो जीरो गया। प्लस फॉल्स पॉजिटिव जो प्रेडिक्ट पॉजिटिव हुआ है, बट एक्चुअल में वो गलत। ऐसे कितने हैं? दो हैं, है ना। सेकेंड वाली लो और लास्ट सेकेंड वाली लो। तो ये हो गया, यहाँ पे फोर हो गया। इसका क्या आएगा? 2/2 प्लस फॉल्स पॉजिटिव रेट करना है ना। फॉल्स पॉजिटिव मैंने गलत लिखा। Let me use the eraser now. Could put false to positive data, false positive आपको कॉमन है ये। एक्चुअल नेगेटिव्स आते हैं उसमें, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव क्या होंगे मेरे? व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव? जो कि पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुए हो बट एक्चुअल में पॉजिटिव ना। तो मेरे दो आए ऊपर, तो ठीक ही है ना, एक्चुअल में पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुए हैं, ठीक है। और ट्रू नेगेटिव क्या होंगे? ये मेरे जीरो ही होंगे, है ना। और फॉल्स पॉजिटिव क्या होंगे? पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुए हो बट एक्चुअल में, तो ये दो ही तो है, तो 2 + 2 से इसका आंसर भी वन होगा। तो एओसी आरओसी कर्व क्या होता है? एओसी आरओसी कर्व में हमारा टीपीआर और एफपीआर के बीच में राव हुआ होता है बस। मतलब हम बहुत सारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू एज्यूम करके टीपीआर और एफपीआर निकालते हैं। बेसिकली हमें टीपीआर और एफपीआर निकालना है और उनको ड्रॉ करें, उनके पॉइंट्स को। ठीक है, तो इसमें मेरा टीपीआर और एफपीआर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, सॉरी फॉर द पॉज, तो ये आ जाएगा टीपीआर एफपीआर के बीच का। टीपीआर अभी मेरा वन है और एफपीआर मेरा क्या है? वन। ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट रिड्यूस ऑल दिस। ऐसे सिमिलरली मतलब मेरा और चीज को बच जाए, जैसे कि वो मैंने इसको एज कर दिया अभी। मैं वाई हेड जीरो की जगह कुछ और लिखेंगे, मुझसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सब इरेज कर दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे पेन पिकअप करते हैं। अब हमने ले ली वैल्यू, ले ली, लेट्स सपोज हमने 0.2 ले ली। ठीक है। क्या लेगा? वाई हेड का अब हम क्या थ्रेशोल्ड पहले हमने जीरो लिया, तब हम 0.2 लेंगे। अब ये वैल्यू जो मेरे थ्रेशोल्ड से नहीं है,
तो वन बाई ये भी थ्रेशोल्ड से मिलता है, ये भी थ्रेशोल्ड से मिलता है, थ्रेशोल्ड से मिलता है। ये थ्रेशोल्ड के बराबर है, वो सिंगल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एक ही में ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीपीआर कैलकुलेट होगा ट्रू पॉजिटिव जो मतलब पॉजिटिव प्रेडिक्ट मिनिमम एक्शन में पॉजिटिव एक ये हो गया, दो तीन चार ऐसे ठीक है तो फोर बाय फोर प्लस फॉल्स नेगेटिव जो कि नेगेटिव प्रेडिक्ट में फॉल्स जीरो तो इसका आंसर क्या आएगा पीपीआर इस केस में मैं वन लाइक ऐसे इसमें फॉल्स पॉजिटिव है फॉल्स पॉजिटिव कितने होंगे मेरे जो मेरे पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुआ ना या टू कलर एक ये है बस एक ही है ट्रू नेगेटिव कितने होंगे मेरे जो कि मेरे नेगेटिव प्रेडिक्ट हुए पर ट्रू एक फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं मेरे जो कि मेरे पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुए हैं पर गलत मेरे प्रेडिक्ट हुए हैं पर गलत ऐसा मेरा एक ही है तो वन बाय टू तो यानी कि 0.5 आता है तो इस केस से मेरा ये आया राइट क्या इसी तरीके से हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू अलग अलग करके यार एफपीआर कैलकुलेट करते जाएंगे उसके बाद हम फाइनली टी पर एफपीआर के बीच में कर्व बना लेंगे उसको बोलते हैं क्यू से आर से कर्व टीपीआर एफपीआर आया है true positive or false positive divided by actual positive. TPR is true positive divided by actual positive. FPR is false positive divided by actual negatives. This is what TPR and FPR is. इस करने में कौन कर सकता है फाइव सी की मैं स्कूल का केमिस्ट्री यार और एफपीआर के बीच में तक कलर बनाएंगे ठीक है ना तो ये तो मेरे ठीक है एफपीआर let me just erase this करना yes और मैंने कोशिश की है ठीक बन जाए फॉल्स पॉजिटिव डेट यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव डेट या फिर ठीक है तो पहले मेरा क्या था टीपीआर और एफपीआर का हमने देखा था ना टीपीआर एफपीआर पहले आया था मेरे को वन उसके बाद आया 1.5 उसके बाद हम ऐसे ही अगर कॉल लेते जाएंगे ना तो हम लोग तो वैल्यूज मेरी आती जाएंगी फॉर एग्जाम्पल तीसरे केस में आ गया मेरे पीआर पॉइंट पे एंड पीआर एफ उसके बाद मेरा इफेक्ट है कुछ भी आ सकता है उसके बाद अगर मैंने ऐसे काफी सारी वैल्यू है मेरी लाइक पीआरएस 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 ये भी ये तो एक बार ये याद है
FPRS, FPRS point. जैसे बहुत सारी वैल्यू आ सकती है मेरी अलग अलग थ्रेशोल्ड्स की, थ्रेशोल्ड्स के लिए आएंगे इसमें अलग अलग हर एक टीटीआर एफटीआर कैलकुलेट करने के लिए हर एक सेट ऑफ टीटीआर एफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें थ्रेशोल्ड बदलना होता है। इसीलिए कभी कई बार ऐसा भी हो रहा है कि मेरा एफटीआर सेम है तो वो सेम मिल सकते हैं ना। तो अब इससे हम पर कैसे प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ओरिजिन है, फिर हमने जीरो करा, यहाँ पे मैंने वन करा, यहाँ पे लेट्स सपोज ये हुआ है तो वो वन वन एक ही मेरा पॉइंट है, तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे एक लाइन बन गई। ठीक है, एक तो मेरा पॉइंट ये बन गया, एक है मेरा एफ पी आर इज 0.5 एंड टी पी आर इज 1। सो एक मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पे 0.5 इसे थ्रेशोल्ड के लिए, एक है मेरा एफ पी आर इज 0 एंड टी पी आर इज 0.5। एक मेरा आ गया मेरा यहाँ पे 0 एंड 0.5। एक है आ गया मेरा पी आर इज 0.5 एंड टी पी आर इज ऑल्सो 0.5, यहाँ पे आ गया। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पॉइंट पूरा ये आएंगे 1.5 था, 0.5 एंड 1 एक यहाँ पे आ गया, एक आ गया मेरा 0.5 और 0.5। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें मेरे ये सेम भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब हर एक वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड के लिए अलग वैल्यू का चला तो इसमें के कुछ ऐसा करना है। इस कर्व को हम बोलते हैं तीन से अलग सॉरी यार रखे हैं के बीच में चक्कर बोलते हैं। तो इसे Love's curve is called RC, and the more the alien number four, the better the model is. The good one should be greater than the line which is 50 kilometers. Here, like this. This is the area under the curve. Yeah, and this curve is called RC curve. AUC area under curve. This is AUC, and this curve is called RC. So the good model should be greater than the line which is passing through the origin. Okay. So इसमें क्या होगा? Let me just go to ChatGPT, guys. एक बार फिर से best words. अरे हमारे टाइम से चलो
तो इससे क्या होगा बेसिकली हाइपरकेल्सिया फॉर्म में क्या? ठीक है, इतना ही है। इसको ना मैं एक और वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगी, इसके लिए पार्ट 2 भी बनाएंगे। अंटिल देन यहीं तक रखते हैं अभी। सो नाउ वी मीट अनदर वीडियो में अनदर सेशन। अंटिल देन गुड बाय। एंड इसका आगे कंटिन्यू करेंगे हम, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट सेशन। सो please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.